Hello student, today I am going to discuss part 6 of principles of inheritance and variation. In this part, we will discuss about the sex determination. So first we will discuss about the sex chromosomes and autosomes. Sex chromosomes are those chromosomes in which are present singly or in pairs and determine the sex of the individual. Sex chromosomes are those which determine the sex of the individuals and they are called allosomes. A sex chromosome that determines the male sex is called androsomes. For example, Y chromosome is the male chromosome. The normal chromosome other than the sex chromosome are known as autosomes. Sex chromosomes may be similar in one sex called homomorphic. For example, in females of human being, both the sex chromosomes are of same type. That's why these type of sex chromosomes which are similar, एक जैसे दिखने वाले sex chromosome को हम homomorphic कहते हैं. An individual with dissimilar sex chromosome are known as heteromorphic. For example, in human male, X, Y are present because there are two different types of chromosomes present in human male. That's why they are known as heteromorphic. We will discuss here that in human being, in humans there are 44 plus XX or 44 plus XY chromosome are present. These chromosomes are present in a female, and here these type of chromosomes are present in male. So out of these 46 chromosome or 23 pairs of chromosome, so autosomes are the chromosomes other than the sex chromosome. So there are 22 pairs of chromosomes in human being are autosomes. So 22 pairs of chromosome in human being are autosomes, and one pair which is known as sex chromosome or allosome. One pair of chromosome or we can say two chromosomes. Two chromosomes are sex chromosomes. So in male and female, the two sex chromosome or allosome in male are X and Y, and here X and X. So because there are two different types of sex chromosome are present in human male, they are called heteromorphic. So heteromorphic chromosomes means different types of sex chromosome present in male, and because in female both the sex chromosomes are of same type, that's why they are known as homomorphic. क्योंकि यहाँ पर दोनों सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के हैं, एक X है एक Y है, इसलिए इसको हम हेट्रोमॉर्फिक कहेंगे. यहाँ पर दोनों सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए इसको हम होमोमॉर्फिक कहेंगे. मेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर 44 प्लस XY
and here 44 plus in female 44 plus XX chromosomes are present. At the time of gamete formation, male produces two types of gametes, 22 plus X, and another type of gamete contains 22 plus Y. So there are two types of sperms are present in male. In 50% of the sperm, 22 plus X type of chromosomes are present. In another 50% of chromosome, 22 plus Y types of chromosomes are present. But in female, both the gametes or egg produced are similar. They produce same type of gametes. That's why males are heterogametic, मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक क्यों हैं? क्योंकि ये दो तरह के स्पर्म्स या मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं. फीमेल्स आर होमोगैमेटिक because they are producing similar type of gametes. तो हेट्रोगैमेटिक का मतलब है अलग अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करना. ह्यूमन मेल के अंदर 50% स्पर्म्स के अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम होता है और 50% स्पर्म के अंदर 22 प्लस वाई क्रोमोजोम होता है. जबकि फीमेल एक ही एग प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसके अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम होता है, क्योंकि फीमेल सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है. इसलिए इनको हम होमोगैमेटिक कहते हैं. दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेट्रोगैमेटिक. नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द sex of an individual. Determination of sex. Determination of sex in human being. Here male contains 44 plus XY. These are the chromosomes present in males, and in females chromosomes present are 44 plus XX. When they form gametes, there are two types of gametes are formed. That's why they are known as heterogametic. Males are heterogametic because they are producing two types of gamete. एक गैमेट के अंदर X क्रोमोजोम होगा, दूसरे के अंदर Y होगा. Females are homogametic because they produce same type of gamete, and in human female only one egg is produced. So at the time of fertilization, suppose this sperm fuses with this egg, then 22 plus 44 plus X chromosome will be there in that zygote, and this gamete fuses with this one, then 44 plus XX, again same type of gametes will be there. Suppose if a sperm with Y chromosome fuses with the egg, then zygote will have X and Y type of chromosome, and if it fuses with this egg, then 44 plus X Y type of chromosome. So here we can see that. Now the question is how we can determine the sex. If an individual having both the sex chromosome are XX, then such individual will be female.
and if an individual having X and Y type of chromosome, then this individual will be a male. So in this way we can determine the sex in human being. First we'll discuss about the chromosomal determination of sex. Here one example is given that XX and XY type. यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो पहला वाला XX है ये फीमेल के क्रोमोसोम्स लिखे हुए हैं और बाद में ये मेल के क्रोमोसोम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक प्रोसीजर है लिखने का, जितने भी अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो जो फर्स्ट सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल का होगा और सेकंड सेट जो होगा वो मेल का होगा। दे आर फाउंड इन insects, in most of the insects like Drosophila and mammals. They are also found in human being. Same type is found in human being. क्योंकि फीमेल्स के अंदर एक ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम हैं, इसलिए इसको हम होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर हैं एंड दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, इसीलिए इनको हम हेट्रोगैमेटिक भी कहेंगे. Males has two different types of sex chromosomes, that's why they are known as heteromorphic. यहाँ पर X और Y दो अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम हैं, इसलिए इनको हम हेट्रोमॉर्फिक कहेंगे. And they produce two different types of gametes or sperm. In one, this X chromosome will be present, in another Y chromosome will be present. That's why males are heterogametic in nature. Y chromosome is shorter and may be hooked. In human being and Drosophila also, the Y chromosomes are shorter and they are hooked. So we can take a draw here that this is the X chromosome in male and this is the Y chromosome in male. Y chromosomes are hooked. They are of this type. So Y chromosomes are shorter and hooked. We have drawn here. This one is the Y chromosome. Despite differences in morphology, the XY chromosome synapses during the zygotine, because at the time of gamete formation, synapsis takes place during the meiosis, and it is the zygotine stage during which this synapsis takes place. It is because they have the two parts, an homologous part and a differential part. Y chromosomes में दो पार्ट होते हैं. ये जो पार्ट है इसको हम होमोलोगस पार्ट कहेंगे and this part is called differential part. So if they are बिकॉज इनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इनके बीच में सिनेप्सिस जाइगोटीन स्टेज में कैसे होती है. तो यहाँ पर दो डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. एक पार्ट डिफरेंशियल है, यानी यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होंगे. जो होमोलोगस पार्ट है, जो जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे द सेम टाइप ऑफ जीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. तो जो सिनेप्सिस होती है इट टेक्स प्लेस इन दिस रीजन. जो होमोलोगस पार्ट है वाई क्रोमोसोम का वो एक्स क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करता है और सिनेप्सिस करता है. तो बट दिस रीजन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ genes which are not present on the X chromosome. Human beings have 22 pairs of chromosome.
and out of 22 pairs, one pair of sex chromosome, all the gametes formed by the females are similar, 22 plus X, and therefore they are known as homogametic. Similarly, males produces two different type of gametes. Here in one gamete 22 plus X type of chromosomes are present, in another Y chromosome is present. Therefore, males are heterogametic. Sex of the offspring is determined at the time of fertilization. Fertilization of egg with sperm will produce a female child. एक फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगी अगर उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे 44 प्लस XX, while fertilization of egg with 22 plus X with a sperm 22 plus Y will produce a male child. तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे. इसको एक बार हम और देख लेते हैं कि मेल के अंदर 44 प्लस X Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. फीमेल के अंदर 44 प्लस X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. मेल में जब गैमेट्स बनेंगे तो 22 प्लस ये दो तरह के गैमेट्स बनाएंगे, इसलिए इनको हम मेल्स को हेट्रोगैमेटिक कहते हैं. एक टाइप के गैमेट्स में X सेक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरे में Y टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा. फीमेल विल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, इसीलिए इनको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, क्योंकि इनके दोनों गैमेट्स के अंदर सिमिलर टाइप के सेक्स क्रोमोसोम हैं. इसीलिए फीमेल्स होमोगैमेटिक हैं और मेल हेट्रोगैमेटिक. अगर इस स्पर्म का फ्यूजन इस एग के साथ होता है तो 44 प्लस XX क्रोमोसोम इंडिविजुअल में पाए जाएंगे जो न्यू ऑफस्प्रिंग है. और अगर ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज होता है तो 44 प्लस XX क्रोमोसोम पाए जाएंगे. लेकिन अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज होगा तो 44 प्लस XY क्रोमोसोम होगा उस इंडिविजुअल में, और यहाँ पर 44 प्लस XY. तो इस तरह के क्रोमोसोम इस तरह के इंडिविजुअल जिनके अंदर XX टाइप का सेक्स क्रोमोसोम पहुँचा है वो एक फीमेल चाइल्ड होगी, और ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनके अंदर XY टाइप के क्रोमोसोम हैं वो एक मेल चाइल्ड होगा. तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन बीइंग. Next type is XX and XO type. As we have discussed right now that these are the type of sex chromosome present in female and these are the type of chromosomes present in male. ये मेल में प्रेजेंट हैं और ये फीमेल में प्रेजेंट. So they are present in roundworm and some insects. इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं कुछ राउंडवर्म और इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, लाइक बग, grasshopper and cockroaches. यहाँ पर आप देखेंगे the females have two sex chromosome and they are similar type of sex chromosome. So they are homogametic because they will produce the same type of gametes. In both the gamete, XX type of chromosome will be present. Males have only one sex chromosome. It is very important to note here because here 0 is written. So 0 means there in males have only one sex chromosome. इसे आपको याद रखना होगा. So there is only X chromosome is present in male. So there is no second sex chromosome present in male. That's why they are designated as XO. So males are heterogametic. अब ये हेट्रोगैमेटिक क्यों होंगे? क्योंकि
कुछ मेल्स के अंदर AX प्रेजेंट होगा, यानी ऑटोजोमल एक जो लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह हमने ऑटोजोम लिखा है। जितने भी नंबर क्रोमोजोम्स होंगे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय A। उसके बाद इस गैमेट के अंदर, एक गैमेट के अंदर एक सेक्स क्रोमोजोम होगा X, जबकि दूसरे गैमेट के अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं होगा। तो मेल के अंदर दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एक के अंदर X क्रोमोजोम होगा, दूसरे के अंदर नहीं होगा। इसलिए मेल्स हेट्रोगैमेटिक है, और फीमेल क्योंकि वो सिमिलर टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए फीमेल होमोगैमेटिक होगी। हियर व्हेन ओवम, एक ऐसा एग जिसके अंदर A+X टाइप के क्रोमोजोम्स हैं, वो स्पर्म के साथ फ्यूज होता है जिसके अंदर A+X टाइप के क्रोमोजोम्स हैं, देन ए zygote will develop and this zygote will be a female zygote. Similarly, when ovum with AX fertilize with sperm with a gamete without sex chromosome, there is no sex chromosome, they have no X chromosome, then a zygote is developed into a male, will develop into a male. Now we will see by cross that how we can determine the sex in these roundworm and insects. As we have discussed that females, in females of this group, they have AA plus XX type of chromosome, and males have AA plus X0, यानी मेल के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोजोम है, दूसरा सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो फीमेल्स होमोमॉर्फिक होंगी क्योंकि यहाँ सिमिलर टाइप के सेक्स क्रोमोजोम हैं। दे आर हेट्रोमॉर्फिक बिकॉज देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ sex chromosome are present. Now we will see that what type of gametes will be formed here. A plus X, सेकेंड में A plus X, यहाँ पर A plus X and A plus 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं फीमेल के अंदर जो दोनों सेक्स क्रोमोजोम हैं, they are of similar type, that's why female are homogametic and males are heterogametic, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, दो अलग अलग तरह के मेल स्पर्म बन रहे हैं। एक स्पर्म के अंदर सेक्स क्रोमोजोम है, दूसरे के अंदर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए मेल्स हेट्रोगैमेटिक होगा और फीमेल होमोगैमेटिक होगी। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। सपोज दिस एग फ्यूजेस विद दिस मेल गैमेट, देन AA plus XX will be there in the offspring, and if this egg fuses with this male gamete, then AA plus X0. When this egg fuses with this sperm or male gamete, then AA plus XX type of gamete will be there, and if this egg fuses with this sperm, then AA plus X0 type of sperm will be there. अब ये जो इंडिविजुअल है ये एक फीमेल होगी क्योंकि इसके अंदर XX क्रोमोजोम है। इस इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि इस ग्रुप के मेल के अंदर एक ही सेक्स क्रोमोजोम होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये मेल होगा। सिमिलरली ये ऑफस्प्रिंग एक फीमेल में डेवलप होगा और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये एक मेल होगा। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द सेक्स इन दिस ग्रुप in this group.
Next is a type of group ZW. These are found in female and these sex chromosome are found in male. ये फीमेल में पाए जाते हैं, ये मेल के अंदर. And these are the sex chromosomes which are found in birds and reptiles. Here the females have two types of sex chromosome. They have two types of sex chromosome. यहाँ पर आप देखेंगे एक Z है और एक W है, क्योंकि फीमेल के अंदर दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम हैं, इसलिए फीमेल क्या होंगी, दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट और ये हेट्रोगैमेटिक कहलाएंगे. और जो दो तरह के गैमेट बनेंगे ये एक के अंदर A+Z होगा और दूसरे एग के अंदर A+W होगा. यहाँ पे मेल्स दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. Here you can see they have similar type of sex chromosome. They will produce similar type of gamete. That's why they are known as homogametic, and they will produce same type of gametes. Both the gametes will have A+Z type of sperms. Chromosomes. So when ovum with A+Z fertilized by the sperm with A+Z, then a male will be produced A+ZZ. When ovum with A+W is fertilized by sperm with A+Z, then a female with A+ZW types of chromosome, एक फीमेल यहाँ पर प्रोड्यूस होगी. इसे भी हम क्रॉस करके देखते हैं कि how and what type of results we will get. Now we will see with the help of cross that what type of and how sex can be determined in birds and reptiles. Here the female have different types of sex chromosome and males have same type of sex chromosome. तो यहाँ पे फीमेल होमोमॉर्फिक हेट्रोमॉर्फिक होंगी बिकॉज दे हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. मेल्स होमोमॉर्फिक होंगे बिकॉज दे हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. अभी हम गैमेट्स देखते हैं, किस तरह के गैमेट्स बनेंगे. फीमेल के अंदर दो तरह के गैमेट्स बनेंगे. एक गैमेट के अंदर A+Z होगा और दूसरे गैमेट्स के अंदर A+W होगा. मेल के अंदर सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम, सारे मेल गैमेट्स में एक ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम होंगे. तो यहाँ पर फीमेल होमोगैमेटिक होगी, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी. हेट्रोगैमेटिक फीमेल क्यों है, क्योंकि वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है. इसी तरह मेल होमोगैमेटिक होगा, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स. अब इसको क्रॉस करके देखते हैं. अगर ये एग इस स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो क्या जीनोटाइप यहाँ प्रेजेंट होंगे, A+ZZ. अगर ये इस स्पर्म से फर्टिलाइज होता है देन अगेन A+ZZ विल बी देयर. अगर ये एग इस स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो A+ZW. और अगर ये के साथ फर्टिलाइज होता है देन AA+ZW. क्योंकि यहाँ फीमेल होमोमॉर्फिक होती हैं, दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, तो बोथ दिस इंडिविजुअल विल बी फीमेल. ये दोनों फीमेल होंगी और ये दोनों इंडिविजुअल जिसके अंदर
इस टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, डिसिमिलर टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, ये एक मेल होगा। Next type is ZO or ZZ type. It means that in females they have only one type of sex chromosome Z. These are the sex chromosome in female and these are the sex chromosome in male. ये बर्ड का उल्टा हो गया, बर्ड में मेल के अंदर एक ही सेक्स क्रोमोसोम था, यहाँ पर फीमेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम है एंड दिस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन बटरफ्लाई एंड मॉथ. Females have only one sex chromosome Z. There is no second sex chromosome and that's why they are designated as Z0. Males have similar types of sex chromosome. That's why they produce same type of gametes. They are homogametic. All the gametes will have A plus Z type of chromosomes. When ovum with A plus Z and sperm with A plus Z fertilize each other, then male will be produced. कि मेल के अंदर दोनों ZZ क्रोमोसोम है. इसी तरह से एक ओवम जिसके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, अगर ये एक ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज होता है जिसके अंदर A प्लस Z क्रोमोसोम है तो एक फीमेल प्रोड्यूस होगी इसके अंदर A प्लस Z0 टाइप का कॉम्बिनेशन होगा. तो ये बटरफ्लाई और मॉथ में पाया जाता है. इसको भी हम क्रॉस करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं. तो यहाँ फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 44 प्लस यहाँ फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो AA प्लस Z0 है और मेल के अंदर AA प्लस ZZ है. फीमेल जो गैमेट्स बनाएंगे दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड हियर. A प्लस Z, एक गैमेट के अंदर, एक एग के अंदर A प्लस Z होगा यानी एक सेक्स क्रोमोसोम है. दूसरे एग के अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, इसीलिए इसको हमने यहाँ 0 लिखा है. इसी तरह मेल के अंदर एक स्पर्म के अंदर A प्लस Z होगा और दूसरे स्पर्म के अंदर A प्लस Z होगा. तो यहाँ पर फीमेल क्या होंगी, क्योंकि ये दो तरह के एग प्रोड्यूस कर रही हैं इसलिए फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी. Female is heterogametic and male is homogametic. मेल होमोगैमेटिक क्यों है, क्योंकि वो एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब फीमेल हेट्रोगैमेटिक क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक गैमेट के अंदर सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरे के अंदर नहीं है. अब हम इनका फर्टिलाइजेशन देखते हैं कि अगर ये एग इस स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो इस एम्ब्रियो के अंदर AA प्लस ZZ कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा. अगर ये इस स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो AA प्लस ZZ कॉम्बिनेशन होगा. अगर ये एग इस स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो AA प्लस Z0 कॉम्बिनेशन होगा और ये स्पर्म अगर इससे फर्टिलाइज होगा तो AA प्लस Z0 कॉम्बिनेशन यहाँ प्रेजेंट हो. तो इस टाइप का सिमिलर टाइप के जो सेक्स क्रोमोसोम हैं आपने यहाँ देखा मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी मिलता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये मेल होंगे और अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये फीमेल होंगे.
नेक्स्ट इज हैप्लोप्लॉइडी। यहाँ पे देखिए दो वर्ड हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी। Haplodiploidy occurs in insects like honeybees, ant and wasp. It is a type of sex determination in which the male is haploid while female is diploid. इसीलिए इसको हम haplodiploidy कहते हैं. Males are haploid because they are developed parthenogenetically from the unfertilized egg. इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है. तो पार्थेनोजेनेसिस एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें अनफर्टिलाइज एग किसी एक मेल इंडिविजुअल में, जैसे हनी बी के अंदर मेल इंडिविजुअल में डेवलप होता है. तो ये क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग है और एग हैप्लॉइड होता है, तो इससे बनने वाला जो इंडिविजुअल होगा वो भी हैप्लॉइड होगा. तो यहाँ हनी बी के केस में हैप्लॉइड मेल डेवलप होता है. दूसरा, फीमेल्स ग्रो फ्रॉम द फर्टिलाइज एग. फीमेल फर्टिलाइज एग से डेवलप होती हैं, इसलिए डिप्लॉइड होते हैं. यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं. एक मेल हैप्लॉइड है और फीमेल डिप्लॉइड. मेल हैप्लॉइड इसलिए हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय द पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज एग है वो डायरेक्टली मेल में डेवलप हो जाता है. यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. और फीमेल डिप्लॉइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एग और स्पर्म एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं और एक डिप्लॉइड फीमेल प्रोड्यूस होती है.